Good morning, dear students. I hope you all are fine, studying properly at home. In the previous lecture, we started another chapter of physics, that is chapter number 9. In yesterday's lecture, we learned the definition of force. Okay, so what is the meaning of force? Force is a kind of push, pull, kick, okay, any kind of muscular force that brings the object to motion. Then we also studied that simply applying a force on an object is not enough to get that object in motion. You have to apply unbalanced force. We did one experiment also, that if balanced force is acting on that object, that is force is acting from both direction and its magnitude is also the same, then the object does not show any kind of motion. Okay, so in short, we learned about the difference between balanced force and unbalanced force. Now, in this particular chapter, we are going to learn about 3 different laws of motion that are very, very important in standard 9 as well as for your studies in the coming standards also. Okay, so today our target is to learn about the first law of motion. Now, Galileo, while performing different experiments, rolled a marble through an inclined plane. Okay, जो ऐसे एक ढोला वाली जो जगह होती है उसको inclined plane बोलते हैं. Okay, which has a particular angle. It's a kind of slope. From that slope, a marble was rolled down. Now Galileo observed that as that marble is coming down the slope, its velocity goes on increasing before it reaches the bottom. तो जब मार्बल रिलीज की तब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी. जैसे जैसे मार्बल नीचे आएगी उस पर एक फोर्स लगेगा, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. सो ड्यू टू दैट ग्रेविटेशनल फोर्स और ड्यू टू दैट ग्रेविटेशनल पुल, द वेलोसिटी ऑफ मार्बल विल गो ऑन इंक्रीजिंग. ओके, सो सपोज दिस इज द स्लोप, अ मार्बल इज रिलीज फ्रॉम हियर. सो व्हेन इट कम्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ग्रेजुअली इट्स स्पीड गोज ऑन इंक्रीजिंग. उसके बाद क्या होता है, उसने ऑपोजिट पे एक दूसरा स्लोप लगा दिया, तो ये मार्बल यहां से नीचे रोल करती है और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जब वो ऊपर चढ़ना चालू करती है तब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है. यानी कि व्हेन द मार्बल वाज रिलीज फ्रॉम दिस पॉइंट, इट्स वेलोसिटी वाज मिनिमम. एज इट स्टार्टेड कमिंग डाउन ड्यू टू दैट ग्रेविटेशनल फोर्स, इट्स स्पीड वेंट ऑन इंक्रीजिंग. So when it reached at this point, its velocity was highest. अब वो क्या करती है, जो ऑपोजिट साइड पे स्लोप है उस पे क्लाइंब करना चालू करती है, क्योंकि यहाँ जिस फोर्स से वो आई है उस हिसाब से वो ऑपोजिट साइड पे भी थोड़ा डिस्टेंस तक जाएगी. सो एज इट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड्स, इट्स वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग. तो अब क्वेश्चन आया कि ऐसा क्यों हुआ. जब वो मार्बल ऊपर से नीचे आ रही थी, when the marble was rolling from top to bottom, its velocity was increasing. Now after reaching the ground, it is moving in the opposite direction in the another slope which is inclined at the same angle. ठीक है, ये एंगल और ये एंगल सेम है. अगर यहाँ पे आप नॉर्मल लोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो आप समझ सकते हो वो सेम है. तो यहाँ पे इंक्लिनेशन वाले दो एंगल सेम है, तो जिस हाइट से आपने रिलीज की है ऑपोजिट साइड पे इट विल रीच द सेम हाइट. बट व्हेन इट विल रीच द सेम हाइट एट दैट टाइम, its velocity will again become 0. तो अगर इसकी velocity 0 हो गई, then again it will start rolling backwards and it will go in the upward direction. ऐसा तब होता है जब आपका जो inclined plane है वो frictionless है. ओके, उस पे friction की कोई इफेक्ट नहीं होती. So if you are taking such a plane and if you release a marble from particular height, then marble rolls down the plane. While rolling down, its velocity goes on increasing. After reaching the ground, it starts climbing on the another slope in the opposite direction. But when it is going from bottom to top, gradually its speed goes on decreasing. यानी यहाँ से यहाँ तक आने में स्पीड डिक्रीज होते होते एक पॉइंट वैसा आएगा जहाँ पे उसकी स्पीड हो जाएगी 0. ओके, एंड देन इट विल कम बैक अगेन. यानी कि ये मार्बल कब वापस आती है, when it attains its original height.
यहाँ पे उसकी जो ओरिजिनल हाइट थी, ठीक है, वो यहाँ से रोल होके नीचे गई और उसने ऊपर रोल होना तब तक चालू रखा जब तक उसकी ओरिजिनल हाइट उसने अटेन नहीं कर ली। एंड व्हेन इट अटेन्ड इट्स ओरिजिनल हाइट, then it started its journey in the backward direction and then again it attained its original height. Okay, अभी गैलीलियो ने क्या किया? He increased the angle. तो जब वो एंगल इंक्रीज होता है तो रूल ऐसा है कि मार्बल कंटिन्यूज इट्स अपवर्ड मोशन टिल इट अटेन्स इट्स ओरिजिनल हाइट, ठीक है। सो नाउ इट गोज फ्रॉम हियर टू हियर, एंगल हैज बीन इंक्रीज्ड, it attains its original height on the opposite direction. But as you can see, the distance traveled to attain the original height increases. जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ा रहा हूं, इस डिस्टेंस से ये डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। मार्बल तो कब स्टॉप होगी? जब उसने ओरिजिनल हाइट अटेन की है तब। तो मैंने जो एंगल को जरा सा इंक्रीज किया तो मार्बल अगेन ओरिजिनल हाइट तो अटेन कर रही है, इट गोज फ्रॉम हियर टू हियर, बट नाउ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन सेकंड केस is greater than the first case. Okay, मैंने एक बार और एंगल को बढ़ाया और इसको इंक्लाइन प्लेन के एंगल को ऐसे ले लिया, तो अगेन आप देख सकते हो कि उसने ओरिजिनल हाइट अटेन की, बट टू अटेन द ओरिजिनल हाइट अगेन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द मार्बल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। यानी कि मतलब क्या है? व्हेन यू रिलीज अ मार्बल फ्रॉम अ डेफिनिट हाइट ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन व्हिच इज फ्रिक्शनलेस, ओके, देन the marble will keep on rolling. कब तक? जब तक वो अपनी ओरिजिनल हाइट को अटेन नहीं कर लेती। तो it has attained its original height in case 1, case 2 and case 3. But as you move from case 1 to case 2 and from case 2 to case 3, मैंने डिफरेंस क्या किया है कि जो हमारा जो इंक्लाइन प्लेन है उसके एंगल को इंक्रीज किया है। केस 1 से ज्यादा एंगल है केस 2 में, केस 2 से ज्यादा है केस 3 में। As I am keeping on increasing the angles, the distance traveled by the marble to attain its original height goes on increasing. तो यहाँ पे मार्बल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? उससे ज्यादा यहाँ और उससे ज्यादा यहाँ। तो उससे हमको क्या पता चला कि आप जैसे जैसे एंगल बढ़ा के इस प्लेन को सीधा करते जा रहे हो तब तक द डिस्टेंस रोल्ड और डिस्टेंस ट्रैवल बाय द मार्बल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। ऐसा करते करते सपोज मैंने इस लाइन को स्ट्रेट कर दिया, प्लेन को कर दिया स्ट्रेट, ओके। तो जब मैंने इसको स्ट्रेट कर दिया तो मार्बल ओरिजिनल हाइट अटेन ही नहीं कर पाएगी क्योंकि ये स्ट्रेट प्लेन है, ये तो सीधा ही जाएगा। इन दैट केस दिस मार्बल विल कीप ऑन रोलिंग टिल इनफाइनाइट डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि वो तब तक स्टॉप नहीं करेगी जब तक वो अपना ओरिजिनल हाइट अटेन नहीं कर देती। लेकिन मैंने इंक्लाइन प्लेन को क्या बना दिया है? स्ट्रेट बना दिया बाय इंक्रीजिंग द एंगल। इससे इसका एंगल ज्यादा, इसका एंगल इससे ज्यादा, इसका इससे ज्यादा, और मैंने एंगल को बढ़ा के उसको एकदम पैरेलल टू द ग्राउंड कर दिया, ठीक है। सो नाउ इफ मार्बल कीप्स ऑन रोलिंग, कभी भी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जब वो अपनी ओरिजिनल हाइट को अटेन कर पाए। तो उसका मतलब क्या हुआ कि मार्बल कब स्टॉप होगी? when it attains its original height. The marble stopped over here because it attained its original height. Then it stopped here when it attained its original height. It stopped here when it attained its original height. But when I take this inclined plane totally parallel to the surface of the ground, there is no chance that the marble will attain this height. और अगर वो मार्बल वो हाइट अटेन नहीं कर रही है उसका मतलब क्या है? that it will keep on rolling for infinite distance, mean it will not stop at all. Now जब हम लॉजिकली ये सोचते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर आप कोई फोर्स अप्लाई करो तो थोड़ी डिस्टेंस तक जाएगा और स्टॉप कर देगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे हमने एक हाइपोथेटिकली इमेजिन किया है that suppose we are having a frictionless plane. In practical life, to attain a frictionless surface is very difficult. It's next to impossible. Okay? Yes, you can reduce the friction by making the surface smooth. आपकी surface जितनी smooth होगी उतनी friction की value कम होगी, but to attain totally frictionless surface is very difficult. Okay? तो जो हमने ये सिचुएशन पढ़ी है कि जो मार्बल है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक रोल करके मोशन चालू रखेगी, दैट्स एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन। रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि यू कांट ऑब्टेन 100% फ्रिक्शनलेस सरफेस। बट सपोज आप मान लो
कि आपके पास एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन है जिसका सरफेस फ्रिक्शनलेस है, तो ये जो मार्बल है इट शुड हैव kept on rolling for infinite distance. Why? Because it won't stop until it attains its original height. So this particular experiment was performed by Galileo. So after performing this particular experiment, Galileo ने क्या कंक्लूड किया? Galileo ने ये कंक्लूड किया कि जो कोई ऑब्जेक्ट है वो अपना जो मोशन है वो चालू रखेगा। कब तक? जब तक उस पे कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता। ये हमारी मार्बल स्टॉप करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि उस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। बट अगर वो फोर्स नहीं लगता तो वो मोशन कंटिन्यू होता। ठीक है, सो द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन टेल्स अबाउट दिस थिंग आल्सो। ओके, सो व्हाट इज द स्टेटमेंट? लेट अस अंडरस्टैंड। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, एंड और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो इट विल कंटिन्यू इट्स यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। कब तक? अनलेस इट इज कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट। हम आप जब तक उसको फोर्स नहीं करते। ठीक है, कैसे हम उसको फोर्स करते हैं चेंज करने के लिए? बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स। सो वंस अगेन, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट है तो वो रहेगा इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। लाइक इफ आई टेक अ चॉक and put it over here, okay? और इस चौक को कोई टच नहीं करता 2 साल तक, तो ये जो चौक है उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, it will remain here only because the chalk is in state of rest, so it will remain in state of rest unless an external unbalanced force act on it. आपके पास कोई पुरानी कार है, ठीक है, जो आपने घर के गैराज में डाली हुई है, फिर आप एक नई कार लेके आए, so you are not using that old car, ठीक है? So if no one touches that car, okay, then that car will remain there for years. It won't start its motion. Why? Because you are not applying any unbalanced force. तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी टेंडेंसी क्या है? तो अगर वो रेस्ट में है तो इट विल रिमेन इन रेस्ट, एंड इफ इट इज इन मोशन देन इट विल कंटिन्यू इट्स सेम यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। कब तक? Until an external unbalanced force acts on it. ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहता है, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन कंटिन्यू करता है। कब तक? जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की अपना जो स्टेट है, रेस्ट का है तो रेस्ट का, मोशन का है तो मोशन का, उस स्टेट को जो मेंटेन करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं इनर्शिया, INERTIA। सो वंस अगेन, द टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स स्टेट। अब वो स्टेट रेस्ट का है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर वो मोशन का है तो मोशन का रहेगा। ठीक है, सो इफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी टू मेंटेन इट्स स्टेट, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में, मोशन में तो मोशन में, उस टेंडेंसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है, अगर आप घर पे बैठ के टीवी देख रहे हो, ठीक है, बैठे बैठे, जब तक मम्मी आपको आके उठाती नहीं तब तक आप बैठे ही रहते हो, दैट इज योर इनर्शिया। यू वांट टू मेंटेन योर स्टेट ऑफ रेस्ट। जो रेस्ट कर रहे हैं वो रेस्ट ही कर रहे हैं, जो मोशन में वो मोशन में। सो दैट पर्टिकुलर टेंडेंसी इज नोन एज इनर्शिया, जिसका स्पेलिंग मैंने बताया INERTIA। सो फर्स्ट लॉ डील्स विद दिस स्टेट। वो फर्स्ट लॉ बता क्या रहा है कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहता है, अगर वो मोशन में है देन इट कंटिन्यूज इट्स यूनिफॉर्म मोशन। कब तक? जब तक उस पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता। ठीक है, तो उस वजह से जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसका दूसरा भी नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, राइट? सो डियर स्टूडेंट्स, in examination if you are asked to write the statement of first law of motion, or you are asked to write the law of inertia, the statement will be same, because first law of motion उसका दूसरा नाम है law of inertia। ठीक है, now in our daily life, okay, we have experienced many examples which explains to us the first law of motion। Simple example, okay, when you are traveling in a car, okay, at a very high speed on express highway, and suddenly there is an obstacle on the road, okay, and if suddenly your father applies the brake, what happens?
योर बॉडी इज थ्रोन फॉरवर्ड। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब कार चल रही थी विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर और 80 किलोमीटर पर आवर, ओके, वॉट एवर इज द स्पीड, ओके, एंड सडनली व्हेन द ब्रेक्स वर अप्लाइड, तो कार तो स्टॉप हो गई, लेकिन आपका जो बॉडी था, जो मोशन में था, it wants to continue its motion. Okay, it wants to continue its motion due to its inertia. Due to its inertia. That's why our body is thrown in the forward direction. That's why, dear friends, it is very very advisable to wear seat belts. तो जो सीट बेल्ट है वो क्या कर रहे हैं? वो एक ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करके जो आपका मोशन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जिससे कि आपकी हेड या आपके फेस पे इंजरी ना हो। अगर सीट बेल्ट नहीं लगा है तो क्या होगा? यू माइट हैव सीन इन द मूवीज, राइट, आल्सो दैट व्हेन सडन ब्रेक्स आर अप्लाइड, देन द गाय गेट्स थ्रोन अवे एंड ही बैंग्स हिज हेड इन द विंडशील्ड, ही ब्रेक्स द विंडशील्ड एंड कम्स आउट एंड गेट्स इंजर्ड, राइट। सो वंस अगेन उसमें हुआ क्या कि जो कार थी वो मोशन में थी, जब एक्सीडेंट हुआ तब भी गाड़ी स्टॉप हो गई, जब वो ब्रेक लगा के खड़ी रहेगी तब भी वो स्टॉप हो गई, तो कार स्टॉप हुई, बट जो अंदर बैठे हुए जो पैसेंजर्स हैं उनकी बॉडी को इनर्शिया की वजह से दे वांट टू कंटिन्यू देयर मोशन, एंड सो देयर बॉडी इज थ्रोन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। यू कैन थिंक ऑफ वन मोर एग्जांपल, यानी कि आप किसी बस में खड़े हैं, बैठने की जगह नहीं मिली है, ठीक है, बस में या ट्रेन में है, इट इज इन स्टेशनरी पोजीशन, यू आर स्टैंडिंग लाइक दिस, ओके, एंड व्हेन सडनली द बस और ट्रेन स्टार्ट्स, एंड दैट टाइम योर बॉडी इज थ्रोन बैकवर्ड्स। जब कार में ब्रेक लगाई थी तो क्या हुआ? आपकी बॉडी फॉरवर्ड थ्रो हुई थी, राइट। इस बार क्या होगा कि ट्रेन या बस है, इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, योर बॉडी इज इन द बस और ट्रेन, सो इट इज ऑल्सो अंडर द रेस्ट। Suddenly, when the motion of the bus or the train starts, your body still wants to remain in rest due to inertia. क्यों? क्योंकि वो बॉडी रेस्ट में था, तो उसको अभी भी रेस्ट करना है। तो होता है क्या? ट्रेन बढ़ जाती है आगे, लेकिन आपको बॉडी को पीछे रहना है, राइट। सो दैट्स व्हाई यू गेट अ जर्क इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। Same thing happens when you are traveling in any vehicle and there is a sudden sharp left turn or right turn, okay? तो यू माइट हैव एक्सपीरियंस कि जब व्हीकल सडनली शार्प लेफ्ट टर्न रहता है तो आपकी बॉडी राइट में थ्रो होती है। क्यों? क्योंकि सडनली कार तो लेफ्ट में गई, लेकिन आपकी बॉडी को अभी स्ट्रेट ही मोशन करना है। सो टू बैलेंस दैट, ड्यू टू दैट इनर्शिया, यू आर थ्रोन इन द राइट डायरेक्शन। सेम थिंग हैपेंस इन द मैरी गो राउंड, ओके। अगर वो लेफ्ट में मुड़ रही है तो आपकी बॉडी राइट पे थ्रो होगी, और अगर वो राइट में मूव हो रही है तो आपकी बॉडी लेफ्ट में होगी। सो ऑल दीज थ्री एग्जांपल्स give you the meaning of inertia and what is the effect of inertia. It is related to first law of motion. So if in examination you are asked to explain the first law of motion giving examples, you can discuss any of those. There are many examples that you can give from real life, okay. You have to remember what is the meaning of inertia. A body which is in the state of rest wants to remain in the state of rest. A body that is performing some motion wants to continue that uniform motion, okay, until unbalanced force acts on it. So that is basic idea of the first law of motion. Inertia के explain करने के लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, okay. In that activity you are taking an empty glass, उस पे आप एक प्लेइंग कार्ड या एक पोस्ट कार्ड रख दोगे, उस पे आप थोड़ा सा हैवी 5 रुपीज और 10 रुपीज का सिक्का रख दोगे। फिर आप क्या करते हो? यू जेंटली पुश द कार्ड, जो प्लेइंग कार्ड है उसको आप पुश करोगे, तो आपने फोर्स लगाया, किस पे लगाया? कार्ड पे। तो जो कार्ड है इट विल स्टार्ट इन मोशन एंड इट विल बी थ्रोन अवे, लेकिन उसके ऊपर आपने जो कॉइन रखा था that was in the position of rest, that was in position of rest, so it wanted to continue its position of rest. So when you gently applied force on the card, तो कार्ड मूव हो गया, लेकिन कॉइन वही का वही रहा, तो क्या होगा? कार्ड चला जाएगा और जो कॉइन है that will drop in the glass. Now मैंने आपको बोला कि आप हैवी कॉइन रखना, क्यों? क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट जितना हैवी रहेगा उसका इनर्शिया इतना ज्यादा होगा। अगर ऑब्जेक्ट लाइट है, यानी कि अगर मैंने कार्ड पे 5 रुपए की कॉइन की जगह 5 रुपए का कोई पोस्टल स्टैंप रख दिया, ठीक है, तो स्टैंप
उसका वेट बहुत कम है तो उसका इनर्शिया कम होगा। तब क्या होगा कि अगर मैं कार को धक्का दूंगा तो अलॉन्ग विद कार द स्टेम विल आल्सो मूव अवे, ओके। बट इफ आई एम टेकिंग अ कॉइन व्हिच इज क्वाइट हैवी तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा और उस इनर्शिया की वजह से इट विल मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। सो नीचे से कार चला जाएगा, ठीक है, और कॉइन है वो ग्लास में गिरेगा। आपने ये एग्जांपल जब आप कैरम खेल रहे हो तब भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आप कैरम में ओके उसके जो कॉइन्स हैं उसका एक ऐसे करके स्टैक बना देते हो और स्ट्राइकर से नीचे स्ट्राइक करते हो तो जो नीचे वाला पार्ट है, जो सबसे नीचे वाला कॉइन है वो मूव होगा, बाकी का स्टेप वैसे के वैसे भी रह जाएगा। दैट इज ऑल्सो ड्यू टू इनर्शिया। सो डियर फ्रेंड्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। You have to learn this activity, understand the meaning of friction. You have to understand that in reality frictionless surface are not possible. You need to learn the statement of first law of motion. You need to learn about inertia, and you also need to learn about different examples that show inertia. Okay, so I have discussed many examples with you. So I want you to write one example of real life which is related to inertia or first law of motion in the comment box below the video. Thank you. See you soon.